Good evening, everyone. Uh, this is the sum we will do in today's lecture. The following is the summary balance sheet of Rainbow Limited as on 31 March 2017. So we have 20,000 preference shares, 8% redeemable preference shares of rupees 100, 20,000 into 100, it is 20 lakhs. Then we have 40,000 equity shares of rupees 100 each, fully paid. Even 40,000 into 100, which comes to 40 lakh. Then we have securities premium. This reserve cannot be used to create CRR. Then we have general reserve. General reserve can be used to prepare to transfer to the CRR, can be used for CRR. Profit and loss account also can be used for CRR. Then we have current liabilities. In the asset side, we have fixed asset 80 lakhs, investment 8 lakhs, market value is 8 lakh 80,000, stock is 14 lakh, debtor is 14 lakh, bank balance is 4 lakh. The 8% redeemable preference shares are to be redeemed at a premium of 10%. So what they are saying that 8% redeemable preference shares are to be redeemed at a premium of 10%. So 100 rupees is the share. 10% premium means 100 ka 10% is 10 rupees. Fresh issue. So the 20,000 8% redeemable preference shares of 100 each are redeemed at 10% premium. That is 10 ka 10%, sorry, 100 ka 10% is 10 rupees. That means on redemption, per share will be given 110 in return. Fresh issue of equity shares is to be made to the extent required in terms of the provisions of the Companies Act 2013. So in this sum, we don't know how many equity shares. So it should be sufficient number. So it is not given. We have to calculate. All the investments are sold off at all the investments are sold off at market value. So investments are sold out at market value. So what is the market value of investment? It is 8 lakh. Sorry. Cost value is 8 lakh. Market value is 8 lakh 80,000. सो हम जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 8 लाख का इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू में विच इज 8,80,000 में सेल करेंगे तो 80,000 का प्रॉफिट होगा. 8 लाख का इन्वेस्टमेंट 8,80,000 में सेल करेंगे तो इट इज प्रॉफिट ऑफ 80,000. सो दे से इफ देयर इज एनी shortage of fund, temporary bank overdraft to be arranged. So temporary bank overdraft to be arranged in case of shortage of fund. अगर हमें funds कम हो गया तो what we can do, we can arrange for the this one bank overdraft facility. So now let us see what we will do. And the company redeemed the preference shares on 1st April 2017, except in case of one shareholder holding 200 shares who could not be traced. मतलब सबको पे किया लेकिन 200 शेयर्स को पैसा नहीं दे पाए. वन शेयर होल्डर who was holding 200 preference shares who could not be traced. मतलब इसको हम प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन में पैसा नहीं दे पाए. 110 रुपीज 100 रुपीज शेयर का 10 रुपीज प्रीमियम का नहीं पे कर पाए. Subsequently, the company issued bonus shares in the ratio of 1 equity share for every 4 equity shares held during the new issue. तो यहाँ पे what is said that the company issued bonus shares, and bonus shares in the ratio of what? 1 equity share for every 4 shares held
सो 4 शेयर अगर आपके पास है तो आपको एक बोनस शेयर मिलेगा, इंक्लूडिंग द न्यू इशू, मतलब जो हम रिडेम्पशन के लिए न्यू इशू करने वाले उसको भी काउंट करके जिसके पास 4 इक्विटी शेयर है उसको एक बोनस शेयर मिलेगा। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ रेनबो लिमिटेड। सो हवर बुक इज जर्नल एंट्रीज, व्हाट वी विल जर्नल कर लिखना है, तो जर्नल एंट्रीज इन द books of Rainbow Limited, in the books of Rainbow Limited, journal entries in the books of Rainbow Limited, serial number, particulars, LF, debit, credit. So let us adjust the format. So after that we will give the names to the format, serial number, particulars, LF, debit rupees and credit rupee. First entry will be to sell the investment. Investment को sell किया है तो what will come when we will sell the investment? We will get cash. So cash bank account, market value जितना पैसा मिला है 8,80,000, तो जब इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो इन्वेस्टमेंट डेबिट बैलेंस है, असेट है, बट सेल करेंगे तो इट विल कम इन द क्रेडिट बिकॉज असेट इज गेटिंग कैंसल्ड। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इट इज 88 लाख, इन्वेस्टमेंट कितने का है 8 लाख का है। तो इसके बाद 2 हमें प्रॉफिट हुआ, सो इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में इट्स अ प्रॉफिट, सो वी विल राइट 8,80,000 में बेचा, द थिंग वॉज 80, इन्वेस्टमेंट 8 लाख का था, 8,80,000 में सेल किया तो 8,000 का 80,000 का प्रॉफिट हुआ। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट सोल्ड लिखा तो भी ठीक है कि अभी हमें फ्रेश इशू करना है, तो फ्रेश इशू के लिए हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं बोला गया है। सो विल गो टू द वर्किंग नोट, एंड वी विल सी दैट हमें कितना पैसा चाहिए हमें। सो हमें यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू ऑफ preference shares, nominal value of preference shares to be redeemed कितना है 20,000 इंटू 100 वापस करना है, तो ये हो जाता है 20 lakhs, ये हो जाता है 20 lakhs। फिर इसके लिए लेस करेंगे nominal value of fresh new share, fresh issue, nominal value of new shares issued, new shares issued। तो यहाँ पे न्यू शेयर्स कितना है वो तो मालूम नहीं, तो ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा। फिर इसके बाद हमें जो मिलेगा दैट विल बी, तो यहाँ पे हमें मिलेगा वो बाद में, लेकिन हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे बिकॉज वी नो हमारे पास कितना रिजर्व है। तो यहाँ पे आएंगे और सोर्सेस फॉर CRR में लिखेंगे, सोर्सेस फॉर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। हमारे पास जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व हम कितना है जनरल रिजर्व में, दैट इज 12 लाख, जनरल रिजर्व में 12 लाख है, ये पूरा यूज़ कर सकते हैं। जनरल रिजर्व में 12 लाख है, ये पूरा यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं उसका क्या स्टेटस है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दैट इज 5,20,000, 5,20,000 प्लस अभी देखो प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट को सेल करके, इन्वेस्टमेंट को सेल करके प्रॉफिट हुआ, तो दिस बिकेम 6 लाख ना, दिस बिकम 6 लाख। फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 5,20,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में था, फिर 80,000 इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में सेल किया तो मिला। अब हम माइनस करेंगे इसमें से, हम यहाँ पे प्रीमियम देंगे 10 रुपीज़ हर एक इक्विटी शेयर को, सॉरी हर एक प्रेफरेंस शेयर को जब वापस करेंगे उनका पैसा, तो हमें क्या करना है, हमें 20,000 प्रेफरेंस शेयर को हमें 10 रुपीज़ देना है। तो कितना हो जाता है, 20,000 इंटू 10, इट बिकम्स 2 लाख। मतलब हमें कितना देना है, हमें 2 लाख देना है प्रोविजन कर, हमें 2 लाख का प्रीमियम देने के लिए हमारे पास पैसे भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट को यूज़ कर लेंगे। जो हमें 20,000 प्रेफरेंस शेयर को 10 रुपीज़ का प्रीमियम देना है, वो प्रीमियम हम पीएनएल अकाउंट से ले लेते, कोई रूल नहीं है। आप जनरल रिजर्व में से भी ले सकते हो, देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट, बट मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टेकिंग फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। इफ यू विश टू यू कैन ऑल्सो टेक दिस 2 लाख फ्रॉम जनरल रिजर्व। मैं इधर से ले रही हूँ, इट इज जस्ट अ चांस, यू कैन टेक फ्रॉम जनरल रिजर्व ऑल्सो। 2 लाख आप जनरल रिजर्व में से भी ले सकते थे, तो आपको जनरल रिजर्व से ये 2 लाख जो प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए आपने यूज करोगे वहां से लेस करते। अब क्योंकि 80,000 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का आ चुका है प्रॉफिट, तो मैं प्रीमियम यहाँ से राइट ऑफ करूंगी, तो उसके लिए मुझे 2 लाख चाहिए, 20,000 इंटू 10, तो वो मैंने यहाँ से ले लिया। तो कितना बचेगा, 5,50,000 प्लस 80 माइनस 2 लाख, तो बचेगा 4 लाख। बचेगा कितना, 4 लाख। तो कितना हो जाएगा, सीआरआर से हमें कितना मिलेगा, टोटल करो इसको, तो सीआरआर से मिलेगा 16 लाख, सीआरआर से मिलेगा 16 लाख। तो यहाँ पे आई विल राइट 16 लाख, सीआरआर से 16 लाख। सो व्हाट इज द फ्रेश इशू, फ्रेश इशू न्यू शेयर कितने का हो जाएगा, न्यू शेयर हो जाएगा 4 लाख, इट इज द बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे न्यू शेयर प्रीमियम में ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो मतलब हम 4 लाख पार में फेस वैल्यू में सेल करेंगे इक्विटी शेयर। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 4 लाख टू क्या आ जाएगा, जब ये शेयर्स मार्केट में सेल करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड, इक्विटी शेयर्स इशूड, सिर्फ इतना लिखेंगे तो भी चलेगा, फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, पर्पस ऑफ redemption. So this is done. Now what we can do, now we can due कितना है वो निकाल लेते, तो हमें 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर से लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, बट हम जब ये पैसे को पे करेंगे तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा। कितना एक प्रेफरेंस शेयर है, 20,000 इंटू 100 बराबर 110 है, 20,000 इंटू 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 20 लैक्स। और हम और भी देने वाले हैं, हम प्रीमियम भी देंगे रिडेम्पशन में। सो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन अकाउंट 20,000 प्रेफरेंस शेयर को 10 रुपीज़ का प्रीमियम, बिकॉज 10% प्रीमियम है, 100 का 10% इज 10 रुपीज़। सो हम 2 लाख का प्रीमियम पे करेंगे, तो हमारे पास कितना पैसा देना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ये हो जाएगा 20 प्लस 2 22
lakhs. इसको बोलेंगे being amount due on redemption, being amount due on redemption, being amount due on redemption. इसके बाद अब CRR जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका एंट्री. CRR के लिए मैंने जनरल रिजर्व यूज़ किया है. कैसे बता, अभी तुम लोग को बताती हूँ. जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व इज अ लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस, बट यूज़ करेंगे तो डेबिट करना पड़ेगा. P&L अकाउंट भी यूज़ किया है. कैसे बता, देखो इधर सोर्सेस फॉर CRR. जनरल रिजर्व यूज़ किया 12 lakhs, यहाँ पे दिया है जन सोर्सेस फॉर CRR. सोर्सेस फॉर CRR जनरल रिजर्व यूज़ किया 12 लाख. फिर P&L अकाउंट यूज़ किया 4 लाख. P&L अकाउंट यूज़ किया 4 लाख. तो इसको बोलेंगे, इससे क्या क्रिएट हुआ, इससे CRR क्रिएट हुआ. बीइंग CRR क्रिएटेड, बीइंग CRR क्रिएटेड. ये कितना हो गया, 16 लाख. ये कितना हो गया, 16 लाख. इसके बाद जो 2 लाख का प्रीमियम देने वाले हैं उसके लिए हमने पहले से P&L अकाउंट को सेव किया. हमने पहले ही डिसाइड किया, अगर हमें ऐसे जनरल रिजर्व से माइनस करना पड़ता कि CRR के लिए वो 2 लाख यूज नहीं कर सकते बिकॉज वो हमें जनरल रिजर्व से जनरल रिजर्व में साइड में रखना है. पर हमने क्या डिसाइड किया, हम जनरल रिजर्व का पूरा 12 लाख, जो बैलेंस शीट में 12 लाख था जनरल रिजर्व, वो पूरा हमने CRR के लिए यूज किया. एंड P&L अकाउंट में 5,20,000 था और 80,000 इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट हुआ, तो टोटल 6 लाख था. उस 6 लाख में हमने 2 लाख यूज किया. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज किया तो लाइबिलिटी है, यूज करेंगे तो डेबिट होगा. लाइबिलिटी इज क्रेडिट बैलेंस. 2 लाख यूज किया और हमारा जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था डेबिट में, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट में है, ये कैंसल हो जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट. मतलब हमने ये पैसा यहाँ से अरेंज किया और इधर बोलेंगे बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एडजस्टेड. ये भी हो गया. इसके बाद अभी हम पे कर सकते हैं. मतलब हमें 4 लाख इक्विटी शेयर से आया 16 लाख, CRR से आया 16 प्लस 4 इज 20 लाख. फिर 2 लाख और चाहिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के लिए, वो हमें P&L अकाउंट से आया. तो अब हम क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर सकते हैं. बट वो पे करने से पहले हमें 2 चीज़ देखना पड़ेगा. एक तो हम सबको पे नहीं करेंगे, कुछ 200 शेयर का अनट्रेसेबल है, वो भी देखना है. तो हम लोग लेट अस नाउ गो टू द वर्किंग नोट एंड हमारे पास कितना पैसा है वो भी देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले अनट्रेसेबल देखते हैं. अनट्रेसेबल यहाँ पे हमारे पास कितना है, क्वेश्चन में बोला गया 200 प्रेफरेंस शेयर्स है जिसको हम लोग पेमेंट नहीं कर पाए. तो 200 का तो अनट्रेसेबल, ये सेकेंड वर्किंग नोट में अनट्रेसेबल निकालते हैं. कितने लोगों को, 20,000 शेयर में हम 200 लोगों को पैसा नहीं दे पाए. 20,000 में 200 अनट्रेसेबल है, तो हम सिर्फ 20,000 में 200 को पैसा नहीं दे पाए. मतलब हमने 19,800 लोगों को 110 रुपीज़ दिया. 100 रुपीज़ शेयर का, 10 रुपीज़ प्रीमियम का. तो ज़रा काउंट करो कितना होता है, मल्टीप्लाई करो 19,800 इंटू 110, ये होता है 21,78,000. हमने क्या किया, किसको नहीं दे पाए, हम 200 शेयर को 110 रुपीज़ नहीं दे पाए बिकॉज वन शेयर होल्डर
वॉज अनट्रेसेबल, जिसको 200 शेयर देना था, 200 इंटू 110 हम नहीं दे पाए, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 200 इंटू 110 देखो कितना होता है, इट इज इक्वल टू 22,000। ये हमारा अनट्रेसेबल है, इसको हम पैसा नहीं दे पाए, अनट्रेसेबल। तो बाकी लोगों को हमने पैसा पे किया, कितना, 21,78,000, 21,78,000, 21,78,000। लेकिन क्या हमारे पास उतना पैसा है, ज़रा वो देखो, ज़रा बैंक बैलेंस देखते हैं हमारे पास कितना है। बैंक बैलेंस हमारे पास है 4 लाख। तो ज़रा देखते हैं कैसे हम लोग पैसा दे पाएंगे जितना चाहिए। तो पेमेंट, तो थर्ड वर्किंग नोट देखते हैं। पेमेंट क्वेश्चन में बोला है अगर नहीं पे कर पाएंगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट रेस करना है। पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सो यहाँ पे हमारे पास बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस है 4 लाख। फिर हमें इन्वेस्टमेंट सोल्ड करके कितना आया, 8,80,000 आर इन्वेस्टमेंट सोल्ड, आर इन्वेस्टमेंट सोल्ड, हमें मिला 8,80,000, 8,80,000। फिर हमने इक्विटी शेयर बेचा तो फ्रेश इशू से हमें 4 लाख आया, याद है 4 लाख का फ्रेश इशू किया हमने, 4 लाख आया। तो पूरा मिला के इट इज हाउ मच, 16 लाख, 16,80,000। तो जितना कम पड़ा उसका हमने बैंक ओडी किया, जितना कम पड़ा उसका हमने बैंक ओडी किया है। उसका एंट्री हमें पास नहीं किया, उसका एंट्री हमने पास नहीं किया। तो उसका एंट्री क्या रहेगा कि जो भी कम पड़ा, वो क्वेश्चन में बोला गया है कि टेम्पररी बैंक, वेर इज दैट क्वेश्चन, वेट, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टेम्पररी बैंक ओवरड्राफ्ट इज टू बी अरेंज्ड इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड। तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे तो जितना पैसा कम पड़ रहा है वो हम बैंक ओवरड्राफ्ट में लिख देंगे। मतलब हमारे पास बैंक बैलेंस 4 लाख था, लेकिन जब हमने बैंक, जब हम लोग फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे तो पेमेंट करने के बाद हमने देखो हमारे पास टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा है 16,80,000। और हमने कितना पे किया, हमने पे किया, यहाँ पे रॉन्ग लिखा मैंने, 21,78,000। तो ये जो ऊपर का पैसा है, तो अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन कितना है, अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन is 21,78,000। तो देखो बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का चाहिए हमें, बैंक ओवरड्राफ्ट अरेंज्ड कितना रहेगा, कितना रहेगा, माइनस करो 21 लाख, 16,80,000 से 21,78,000, 21,78,000 माइनस 16,80,000, मतलब 4,98,000 का बैंक ओडी है। तो हम यहाँ पे हमें ये बैंक ओवरड्राफ्ट बताना है, बैंक ओवरड्राफ्ट बताना है। और उसका हम लोग चाहे तो एंट्री पास कर सकते हैं कि कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट का, ये 6 वाला एंट्री पैसा आया, सिर्फ बैंक अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा। जब हमने बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया और हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, किस में आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आता है। कितना बैंक ओवरड्राफ्ट लिया, 4,98,000। इधर लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन, बीइंग अमाउंट पेड ऑन
रिडेम्पशन, और इधर लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट रेज्ड। इधर क्या लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट रेज्ड फॉर द पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। तो इसके बाद ये हो गया। इसके बाद एक और चीज क्वेश्चन में लास्ट चीज पूछा है, व्हाट इज इट। देखो बोनस शेयर दिया है, 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर हेल्ड। तो नया शेयर को भी इंक्लूड करना है, तो लास्ट वर्किंग नोट में जाते हैं, और लास्ट वर्किंग नोट में जाते हैं बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स के लिए क्या रेशो है ज़रा देखो। बोनस शेयर के लिए 1 बोनस शेयर मिलेगा अगर आपके पास 4 इक्विटी शेयर है तो, 4 इक्विटी शेयर है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है वो भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्वेश्चन में 40,000 दिया है, जितना मुझे याद है क्वेश्चन 40,000 ओल्ड शेयर है, 40,000 ओल्ड शेयर है 100 रुपीज़ का। नया शेयर कितना है 40,000, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग 40,000 है, एग्जिस्टिंग गिवन 40,000। फिर न्यू जो है वो 4 लाख हमने लिया, 4 लाख डिवाइड बाई 100 कितना होता है, कैसे पता चला क्वेश्चन में देखो। 4 लाख, इक्विटी शेयर किधर गया, हाँ इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख और एक शेयर 100 रुपीज़ का है, तो 4 लाख डिवाइड बाई 100 कितना न्यू शेयर है, करो 4 लाख में से 100 माइनस 100 डिवाइड करो, कितना आता है 4,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास टोटल है न्यू और एग्जिस्टिंग हमारे पास है 44,000, टोटल हमारे पास है 44,000। तो इधर लिखो, इधर लिखो वो 40। अगर हमें एक बोनस 4 शेयर के लिए एक इक्विटी शेयर मिलता है तो 44,000 के लिए कितना इक्विटी शेयर मिलेगा, 44,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 करो, 44,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 करो, कितना आ रहा है आपको, कितना बोनस शेयर आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 11,000 बोनस शेयर सारे ये आंसर ऑफ ₹100 ईच, 11,000 बोनस शेयर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बोनस के लिए CRR यूज करते हैं, बोनस के लिए हम CRR यूज करते हैं। तो हमें कितना चाहिए बोनस के लिए, 11,000 बोनस शेयर ऑफ 100 इज 11 लाख, 11,000 इंटू 100 इज 11 लाख। तो हमें बोनस शेयर के लिए 11 लाख चाहिए, तो हम लोग वो कहाँ से ले सकते हैं, बोनस शेयर के लिए हम लोग CRR यूज करते हैं। तो सोर्सेस फॉर बोनस, वो सोर्सेस फॉर बोनस शेयर्स कितना चाहिए हमें, 11 लाख चाहिए। तो ये 11 लाख हम कहाँ से यूज कर सकते हैं, बोनस शेयर के लिए स्पेशली हम CRR यूज करते हैं। CRR में 16 लाख है और हमें बोनस के लिए 11 लाख चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, हम CRR यूज करेंगे, हम CRR यूज करेंगे। क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि हम लोग CRR रिडेम्पशन के लिए क्रिएट करते हैं, लेकिन उसको यूज करते हैं बोनस के लिए। हम यूज किसके लिए करते हैं, टू गिव बोनस टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो CRR की को हम प्रेफरेंस देते हैं बोनस के लिए। तो CRR अकाउंट यूज करेंगे तो रिजर्व है, डेबिट हो जाए, रिजर्व है, यूज होगा तो डेबिट होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो CRR अकाउंट डेबिट टू
बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, कितना हो जाएगा, कितना बोनस के लिए चाहिए, कितना सीआरआर यूज करेंगे, कितना सीआरआर यूज करेंगे, कितना यूज करेंगे, 11 लाख, क्योंकि उतना ही चाहिए हमें बोनस के लिए, तो इसको बोलेंगे बीइंग बोनस शेयर्स डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड। अब बोनस शेयर पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर जो क्रेडिट में है, बोनस देंगे, ये क्रेडिट में है तो बोनस देंगे तो डेबिट हो जाएगा, और बोनस मिलने से क्या इंक्रीज होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो इसको बोलेंगे बीइंग बोनस शेयर्स पेड या क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल। बोनस मिलने से क्या इंक्रीज होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। विद दिस सम इज डन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।